Good morning, students. Sorry for the delay. Basically, like it was a network issue from the morning. That is why there is a delay in the class. As far as VD lab is concerned, we are on the last two practical of this. That is SRAM and DRAM memory designing. As far as SRAM memory cell is concerned, so in that Tanner tool 13.1 schematic layout and everything is there. SRAM memory cell is going to be like this. ये अपन डिस्कस कर चुके थे एंड दिस इज अ बेसिक schematic diagram of SRAM in this. See, ये जो डायग्राम है in that also two inverters are there along with two MOSFETs. ठीक है, NPN two MOSFETs are there and two inverter और इसके साथ. ठीक है, same thing is going to be here. My voice is audible, beta? Kunal? Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's audible. Okay, so see here, particularly what we needed that in the last lab also I told you that one BL and BL bar is needed. When BL is active, this transistor is active. When BL bar is active, this transistor is active. So for this BL inverter, to get just bar, one inverter is needed. So एक inverter यहाँ लगेगा. These MOSFETs will act just like as they are here. This two inverter is going to be created. So same designing has been done here. This inverter is for the BL. यहाँ BL बार जा रहा है और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है. That is BL. This is two MOSFETs जो वहां पर हमें डायग्राम में ऊपर दिख रहे हैं और ये दो वो इन्वर्टर्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे जो है उनको हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना करके वर्टिकली विडी. Fine, and this connection is for the BL and BL bar. Fine. So this is a complete diagram. I just suggest you to take its screenshot. और हमें इनपुट आउटपुट कहाँ लेना है, एक तो हम यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे और एक यहाँ. हाँ बोलो बेटा. BL कह लो, उसे WL कह लो, दोनों एक ही चीज है. As we are designing SRAM, like read and write both things are used to be there. Suppose when BL is 1, so writing must be done. When BL is 0, so reading must be done. Okay, ma'am. ठीक है. ये है. ठीक है. Now the TSPICE file for this particular NADA 16.2, and these are the connectivity and hierarchical, the top level and bottom level, MN1, MN2, MN3, MN4, MP1, 2, 3. This is going to be 3 inputs हैं. एक तो आपका BL के लिए ये वही 0-1 होगा तो रीड राइट के लिए VDD सप्लाई दे रहे हैं और एक ग्राउंड. So here is C. This is BL. Sometime it is reading, writing, जो भी operations हो रहे हैं उसको ये move on कर. ये Q है, ये Q bar है. ठीक है. And this is the basic input. ये BL है, ये BL bar है. मतलब जो input दे रहे हैं उसका invert ये हो रहा है. Q bar. So take the screenshot of this waveform also. You need to put print out in your file. Okay, this is layout. SEDIT, TEDIT, WEDIT, schematic, static and dynamic analysis.
for speed. The delay timing which is there is 2.26. That is okay. That's it for this SRAM. Last practical is a DRAM. Before starting that, I am just recalling once again. This is your schematic. इसका स्क्रीनशॉट लेना है और एक Done, ma'am. Done. Okay. Now DRAM, dynamic random access memory. Today I am also, after this last practical, I will start VD lecture. So उसमें भी जैसे अपनी last 5th unit start हो गई है. As I told on the Monday, yesterday my एग्जाम ड्यूटीज वर देयर. आज भी नेट की कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी, तो फाइनली अब जाके चला है. तो डी रैम और एस रैम आज मैं तुम्हें थ्योरी में भी 5th यूनिट में पढ़ाने वाली हूँ. सो इट्स थ्योरेटिकल एंड मैकेनिज्म विल बी क्लियर फ्रॉम दैट. ठीक है. Dynamic random access memory is a particular my RAM system which used to be work out when my supply is on and continuous input is there. ये मैं सिंगल मॉस का बता रही हूँ तुम्हें. यही हमें बनाना है. मैं थोड़ा ब्रॉडर कर देती हूँ. यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. FET ये सिंगल मॉस वाला रहेगा और 2 कैपेसिटेंस अपन लगा रहे हैं. एंड बिट लाइन जो है वो ये है और वर्ड लाइन जो है वो हमारी ये है. ठीक है. बिट लाइन ये रही और ये वर्ड लाइन. FET है, ये ग्राउंड. ठीक है. स्टोरेज एलिमेंट ऑफ डी रैम मेमोरी सेल जो है दैट इज कैपेसिटर लेवल. ठीक है. एंड दिस इज अ डायग्राम. और इसमें ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट. टेक इट्स स्क्रीनशॉट. और इसकी वर्किंग वगैरह में भी इतना कुछ नहीं है. स्टोरेज कैपेसिटी और ये तुम्हें सब नेट पे मिल जाएगा. मेन जो लैब पॉइंट ऑफ व्यू से इसके स्कीमेटिक एंड एवरीथिंग इज नीडेड that you just draw. ठीक है. और ये इसका जो बनेगा डायग्राम वो इस तरह से बने. सी दिस इज वन फर्स्ट कैपेसिटर. ये कैपेसिटर यहाँ पर है इसका. ये मॉस है और इसमें हमने 3 ट्रांजिस्टर मॉसेस वाला बनाया है. ये WR देखो थोड़ा सा मैं इसको वाइडर करके आई जस्ट ट्राई आउट. सी ये WR इज हियर, योर BL इज हियर. सी BL और BL बार बोथ इज गोइंग टू बी हियर ऑल्सो एज इट इज इन दी SRAM. तो ये BL है, ये BL बार है, ये WR तुम्हारा आ गया. ये राइटिंग के लिए यहाँ पर सिग्नल है, रीडिंग के लिए यहाँ. I just annote it. See, this is for the reading, this is for the writing. This is BL, this is BL bar. ठीक है. Take the screenshot of this. डायनेमिक एंड स्टैटिक में स्लाइड सा चेंज होता है. स्टैटिक मेमोरी इज दैट मेमोरी विच इज देयर फॉर व्हाट, फॉर व्हेन द सप्लाई इज नॉट गोइंग टू बी देयर. ठीक है. एंड डायनेमिक व्हेन पावर सप्लाई इज देयर and the memory is used to be written, that is a dynamic.
आई सपोज यू टुक द स्क्रीनशॉट, बट ये है कि तुम बना भी लो इसको। तुम लोगों ने एसरेम का बना लिया था क्या स्कीमेटिक? क्यों आंचल, वंदना, मनदीप, लास्ट लैब जब हुई थी तब एसरेम का स्कीमेटिक बना लिया था क्या? हाँ बेटा। नो मैम। तो पहले अभी ये डीरेम का बना लो तुम लोग, उसके बाद में तुम्हें एसरेम का जो स्कीमेटिक होता है वो दिखा दूंगी, तो तुम ड्रॉ कर लेना। इसको बना लो, मैं तुम्हें 3 मिनट दे रही हूँ इसके लिए। In this, why I am telling you to draw this beta, because मेरे को लग रहा है तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी ऑफलाइन या जो भी रहे, सो ओके कंप्लीटेड, थैंक यू। तो उसमें भी अगर ये प्रैक्टिकल्स आते हैं तो एटलीस्ट यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम बाय योर हैंड। बाकी तुम्हें लैब की फाइल में इसके मतलब प्रिंट आउट ही लगाने, ठीक है? एंड इट्स वेव फॉर्म इज दिस। इसमें ये BL और BL बार है, ये रीड राइट है और ये आउटपुट है, ठीक है? यहाँ पे डेटा रीड हो रहा है, रीड का है, ये राइट का है और ये आउटपुट दिख रहा है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सबसे टफेस्ट पार्ट पे आ जाता है एसरेम डीरेम, स्कीमेटिक डिजाइन।
है, ओके दैट्स इट। एंड इसका जो देखो डिले टाइम या टाइमिंग जो लग रहा है वो देख कितना लग रहा है, सी 4.7। And this figure I just want to highlight why it is so. In a DRAM, the delay or the completion time is 4.73, whereas in a static C, it is just half, 2.26. So what it is impacting कि dynamic में हमारा just double हो रहा है as compared to static. ठीक है, so that is one difference in this. So just now I am just this is our last lab to be performed, but yes of course किसका SRAM का schematic नहीं बनाया था तो वो बना लो. I am just moving in a reverse में. This is a SRAM waveform. In this also BL, BL bar, Q, Q bar and WL is there. You take the screenshot of this. ये इन सबके भी स्क्रीनशॉट लेने हैं. वेट SRAM से पहले तक का तो सब हो गया था. आई थिंक ये तुम्हारा SRAM है. इसका मेमोरी सेल डायग्राम तो तुमने बना लिया था. वी वर हियर इन द लास्ट लेब. सो इफ यू वांट टू मेक दिस, ये तो प्रोसीजर वगैरह तो सब में कॉमन रहता है, यहाँ से पूरा लेना है. तो फर्स्ट इज दिस. व्हेन यू कंप्लीट दिस डायग्राम मेकिंग प्लीज लेट मी नो. ठीक है, अंकित, वंदना, कुणाल, तुमने तो बना लिया. लेट देम मेक. व्हेन कंप्लीट जस्ट लेट मी नो. उसके बाद टी एडिट और टी स्पाइस फाइल ये सब भी देखना है. एंड आई विल मेंशन ऑन जिन्होंने भी असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं वो असाइनमेंट्स टाइम पे जमा करें. एंड ऑल्सो आज क्या तारीख है? 28 है. आई एम गिविंग यू मोर देन सफिशिएंट टाइम. 20 नवंबर तक तुम्हें फाइल कंप्लीट करके जमा करनी है गूगल क्लासरूम में. मैं उसमें भी नोटिफिकेशन आज डाल दूँ. ठीक है, दैट इज अ लास्ट डेट. जल्दी बनाओ उसे. इसमें ये मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था, ये BL के बार के लिए हमने एक इन्वर्टर यूज किया है. ये दो मॉसेस वही हैं जो उस डायग्राम है. एंड दीज आर टू माय इन्वर्टर. In when you will make the diagram in the practical examination, एक का WL, IW ये सब तुम नोट करना. ठीक है,
हो गया क्या बेटा? ओके, इसके बाद यहाँ से ये टी एडिट वाला ले लो, इसका तुम लिखो नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ही लो, फिर इसको डीओसी में इस तरह से मर्ज करना कि एक साथ प्रिंट निकल जाए। देखो इसमें आ रहा है एस एडिट 16.2, कब बनाया था इसको, वो सारी चीजें आ रही। And this, sorry, ये कितना लिखा है तुमने? गया, ले लिया बेटा? Anyone just on the mic and tell whether they're done or not, na actually. Okay. इस पूरी टी एडिट में दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। ये सारी तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे आएंगी जब तुम रन कराओगे। हमें जहाँ चेंजेस करने रहते हैं वो ये V1, V2, V3, ये जो अपन इनपुट जो नहीं देते हैं रेक्टेंगुलर में, इसमें हम इनपुट आउटपुट क्या देना चाहते हैं वो चीज। ये इसके बाद ये है, completed बेटा? Okay. Now see, I am just recalling once. I think you have done. This was our list of practical. Total 11 practicals were there. एक तो लॉजिक गेट का था तुम्हारा, हाफ एडर फुल एडर था, SR&D सीरियल एडर, ये 6 प्रैक्टिकल तुम्हारे VHDL के हैं, एंड 5 प्रैक्टिकल इज ऑफ टेनरी EDA स्केमेटिक, जिसमें फर्स्ट इन्वर्टर वाला होगा, सेकंड नैंड नॉर एक्सॉर गेट, थर्ड में मल्टीप्लेक्सर डिजाइनिंग है दोनों 2x1 एंड 4x1, फिर लैच डिजाइनिंग है दैट इज SR एंड D लैच, और फिर है तुम्हारा SRAM DRAM मेमोरीज। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। एनी डाउट यू हैव? आज तो जैसे अपन ने लैब ले ली, तो कल अगर मेरी ड्यूटी नहीं रही एग्जाम ड्यूटी और अपन मैं क्लास लूंगी क्योंकि ट्यूसडे भी नहीं हो पाई थी, तो दैट आई विल इन्फॉर्म यू ऑन ग्रुप। बट यस ऑफ कोर्स, जैसे लैब फॉर्मली कंप्लीट हो चुकी है, बट नाउ ऑनवर्ड्स लाइक थर्सडे जो एज पर टाइम टेबल है तुम्हें लैब लेनी है। कोई भी तुम्हारा डाउट वगैरह हो यू कैन आस्क मी, एंड एक बार अटेंडेंस के लिए तो तुम्हें आना रहेगा। जैसे ही मेरा नोटिफिकेशन रहेगा ना, सुन रहे हो अंकित, कुणाल, वंदना, आंचल, तो फॉर अटेंडेंस यू नीड टू कम फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद अगर तुम्हें कोई डाउट हो यू कैन शेयर विथ मी, नहीं होगा तो फिर अपन क्लास स्विच ऑफ करें। ठीक है, इट इज एज पर द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल सर, अदरवाइज अपनी लैब आज हो चुकी है, और 20 को मैं गूगल उस पर भी डाल दूंगी, एंड सबमिट असाइनमेंट ऑल्सो इन अ टाइम, एंड ट्राई टू सबमिट टिल 30। आफ्टर 30 मतलब 30 भी नहीं, अभी कर दो तो जितनी जल्दी है मैं उसके भी नोटिफिकेशन बता दूंगी किसका जमा हुआ है। ठीक है, नाउ जस्ट गिव योर अटेंडेंस एंड विद इन अ 5 मिनट्स वी आर ज्वाइनिंग फॉर द BD थ्योरी। उसमें SRAM DRAM ही है जो मैं आज बताने वाली हूँ। ठीक है, ओके। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, लाइक इस वीक भी होगी, नेक्स्ट 2 वीक भी होगी। ठीक है, व्हेन आई विल बी ऑन अ लीव आई विल इन्फॉर्म यू। कोई डाउट है या कुछ तुम पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो अभी बेटा, लैब को लेके। 11 प्रैक्टिकल तुम्हें लाइक
जिस तरह से जमा करोगे तो फर्स्ट पेज पे तुम्हारा नाम होना चाहिए, स्कैन करके भेजोगे ना, फर्स्ट पेज योर नेम शुड बी देयर, सेकेंड में इंडेक्स, प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए वो सारे प्रैक्टिकल्स की। प्रीलैब मैंने इस बार मैंने प्रीलैब्स भी दी थी तुम्हें, प्रीलैब्स कर ली है, ये है प्रीलैब्स। तो इसकी वजह से मैंने कहा था कि बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिखना, तो वो तुम कर लेना, ठीक है। सो आफ्टर प्रीलैब योर मेन प्रैक्टिकल, और इसी सीक्वेंस में तुम्हें पूरे 11 प्रैक्टिकल करना। सो लैचेस का एक ही प्रैक्टिकल है, और मक्स ट्रिप्लेक्सर भी एक ही प्रैक्टिकल है, नैन और एक्सॉर एक प्रैक्टिकल, ठीक है। ओके, कोई डाउट नहीं है? वंदना, अंकित, कुणाल, आंचल, अब अपन आज वीडी लेक्चर अभी आई विल सी एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट, बट एक बार वीडी तो मैं तुम्हें करा ही रही हूँ, फिर और टाइम बचा तो फिर देखते हैं जैसे, ठीक है। ओके, प्लीज गिव योर अटेंडेंस। आंचल, आवाज नहीं आ रही आंचल तुम्हारी। अंकित, कुणाल, प्रेजेंट मैम। कुणाल, Present, ma'am. वंदना, वंदना प्रेजेंट मैम। okay beta, just within a 2 minutes I am again starting the new meeting for the VLSI design course. थ्योरी में लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, थ्योरी में अपना सिलेबस जैसे ही होगा उसके बाद 1 या 2 बार और अपन क्लासेस लेंगे, अगर तुम्हें कुछ डाउट या ये रहा देन बंद कर देंगे, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं दिवाली से पहले आई जस्ट मेक यू फ्री, बट अगर नहीं भी हो पाया सो विल सी।